So are you confident? Yes, sir. After speaking? Yes, sir. First thing is that while you are on the podium actually, so how to do your introduction, any topic, and how to prepare? Confident. This is the major questions. This is podium session, and this is just simple podium session. This is your starting stage. You should focus only 3 points. 3 points in the sense your opening point, second is yours major body या main points, and third is your closing point. If you focus on your 3 points while you introducing yourself, while you speaking about any topic, you should focus on only 3 points. First one is your opening, how to open your topic. Second is your base knowledge. If you have some knowledge about the topic, so you have some ability to explain about the topic in your major body. And third thing is your closing, how to close your topic. Suppose that you are speaking very well, but you don't know how to close your topic. So it means you are wasting your all the speech because you don't give the call to action point. Actually, what is your next message and your last message while you close your speech? If you don't know how to give the last message while you about to leaving your stage, what people remember? Actually your face. Because people, they don't know how much you care, they want to know how much you care. Why? The reason behind that in the sense, लोग सब कुछ भूल जाते हैं, जो आपके लास्ट वर्ड होते हैं उसे याद रखते हैं. अगर आपने लास्ट वर्ड अपना कैची दिया, कैची समझते हैं? डू यू नो अबाउट द कैची? कैची इन द सेंस कुछ ऐसा जो चटपटा लगे. हाँ, जैसे कैची थंबनेल आते हैं कि कैची आपके क्लोथ्स आते हैं, है ना? तो वो कैची मतलब जो थोड़ा लगे कि हाँ अट्रैक्टिव है. सो इट मीन्स अट्रैक्टिव अगर आप देंगे, अपने वर्ड्स देंगे, या यू शुड स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन विद हुक. डू यू नो द मीनिंग ऑफ हुक? HOOK, हुक. Hook in the sense the golden statement. While you starting your speech, with the help of golden statement, the positive thoughts, any about the positive message like quotes and motivational lines, I think you should start your presentation with your hook. Good morning everyone. So this is the attention. How to modulate your voice. If you want to grab the attention of your audience, you should speak, because the 38% role of your voice, only the 7% role of your words would you speak, and 55% role of your communication skills. Communication skills in the sense your body language. आप बॉडी लैंग्वेज में क्या कर रहे हैं, जैसे आपकी बॉडी क्या बोल रही है. 55% रोल आपकी बॉडी लैंग्वेज का होता है. आपका कॉन्फिडेंस, हाउ टू मेक द आई कॉन्टैक्ट वाइल यू स्पीकिंग. If you making the eye contact to everyone, it is the good speech. If you are looking the watch while you speaking, just say good morning, I am this, my hobbies are this. तो आपका आई कॉन्टैक्ट क्या है ये भी डिपेंड करता है आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन पर, राइट? सो यू शुड फोकस ऑन द ऑल पॉइंट्स while you speaking. First point is your opening point, how to open your introduction. You should remember always, not in your initial stage, you should remember all the times how you can start your presentation. Suppose that here only your classmates sitting in front of you, just you feel some lack of confidence, lack of practice, you feel some hesitation while you speaking. How many people have these type of problems? Some hesitation. Raise your hand. Hesitation होती है जब आप यहाँ आते हैं? होती है ना? क्या प्रॉब्लम है? डू यू नो हाउ टू रिमूव योर हेजिटेशन? जानते हैं आप? यू डोंट नो हाउ टू रिमूव योर हेजिटेशन विद, आप जानते हैं हाउ? विद द हेल्प ऑफ, क्लैप फॉर हिम. दिस इज द स्टेज फियर एंड दिस इज द नेचुरल फिनोमिना. Don't get any disappointed, don't get confused. How you can remove your hesitation? This is very simple phenomena. Everybody has the hesitation. Suppose that the biggest motivational speaker and the good speaker front of the people, they have also the hesitation and fear of stage. Yes. And you also remember one thing, you can't eliminate your stage fear and your hesitation problem. Sir, how is possible?
It is not eliminate your all the problems like your stage fear and your hesitation problems. Yes, you just control this thing. You can only overcome this problem, not to eliminate 100%. With the help of practice, you can overcome. Nobody actually judge you are hesitate or not hesitate on the stage. While you on the stage, everybody feel the confident. You are all the confident person while you speaking. सो फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग्स. आपको फोकस करना है. ये चीज़ें आप बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते. एलिमिनेट इन द सेंस बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते. आप थोड़ा सा इसे ओवरकम कर सकते हैं या बहुत ओवरकम कर सकते हैं. आपको आज 2 बंदों से आप खुले हैं. देखो 1 to 1 आपकी कन्वर्जेशन होती है, ग्रुप कन्वर्जेशन होती है, या फिर स्टेज पब्लिक स्पीकिंग जिसे हम बोलते हैं वो होती है. तो तीनों चीज़ों में डिफरेंस यही है कि पहले आप 1 to 1 में आप नहीं बोल पाते हैं. जब आप आपस में बात करते हैं आप नहीं बोल पाते हैं. फिर स्टार्ट होती है आपकी ग्रुप डिस्कशन, मतलब आप ग्रुप में 4 लोगों के साथ कुछ बात रखनी है, नहीं रख पाते हैं. उसके बाद शुरू होता है आपका पब्लिक स्पीकिंग, जो आज आपने थोड़ा एक्सपीरियंस लिया है. तो उसके लिए आप इन चीज़ों को, जो आपका डर है, फियर है, मैक्सिमम स्टूडेंट ने पहले अच्छा बोला था लेकिन अभी थोड़ा कम बोला है या फिर उतना अच्छा नहीं बोला है. डू यू नो वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? पता है आपको क्या रीज़न रहा आपका? रीज़न हेजिटेशन रहा. आपको ये लग रहा था कि आ जाएगा बट आपको नहीं आई वो चीज़, बिकॉज लैक ऑफ प्रैक्टिस. तो आपको प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस करने के बाद फोकस करना है अपने आप पे. कौन सी ऐसी स्किल्स है जो आपको बहुत बेहतर करनी है अपनी. हाउ टू प्रैक्टिस ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट. इफ़ यू नो द कंसेप्ट. सबसे छोटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने लोगों को पता है? हाउ मैनी पीपल नो द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस? सबसे छोटा स्ट्रक्चर सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस अदर वर्ड. क्या होता है? स्पीक लाउडली. सब्जेक्ट एक्शन अदर वर्ड. इससे आपको बनाना है. इसी से आपका डेली रूटीन बन जाता है. डेली रूटीन इसी से बनेगा. दूसरा जो स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, अगर पास्ट की बात करते हैं आप, पास्ट में कौन सा होता है? सब्जेक्ट प्लस एक्शन की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड. ये चीज़ें आती हैं तो उसी से आपका पास्ट रूटीन बन जाता है. उसके बाद आपकी आती है फ्यूचर प्लानिंग. फ्यूचर प्लानिंग में क्या होगा? फ्यूचर प्लानिंग में आपको कुछ नहीं करना है. सब्जेक्ट प्लस विल प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म और प्लस अदर वर्ड. ये तीनों स्ट्रक्चर आप करते हैं. ये इनिशियल स्टेज होती है आपकी, इनिशियल पार्ट होता है. आई होप आप सभी ने इनिशियल स्टेज अपनी कवर कर लिया. आप सभी को पता है कि कैसे सिंपल स्ट्रक्चर बनते हैं. क्लियर? उसके बाद आपको ये फॉर्मूले यूज करके अपना पहला डेली रूटीन बनाना है. सेकंड पास्ट रूटीन बनाना है. थर्ड आपको फ्यूचर प्लान बनाना है अपना. जो भी फ्यूचर प्लान हो कि मैं यहाँ जाऊँगा, मैं ये खाऊँगा, मैं ये करूँगा, तो वो चीज़ें आपको कर लेनी है. और अपना इंट्रोडक्शन आपको. ये चारों चीज़ें जब आपकी कंप्लीट हो जाएंगी तो आपका एक स्टेज पार होता है, ताकि आप एक जर्नी जो आप स्टार्ट कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश की, उसमें आप बेहतरी की तरफ जाते हैं, इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं. इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर टुमारो यू हैव टू फाइट योर टुडे. अगर आपको अपना कल बेहतर करना है तो अपने आज से आपको लड़ाई करनी पड़ेगी. लड़ाई इन द सेंस अपने आज को आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आप अपने कल को बेहतर कर सकें. आज अच्छी प्रैक्टिस करोगे तब अच्छा बोल पाओगे. ये बात समझ में आती है आपको? एग्री करते हैं? वुड यू एग्री विद मी? यस और नो? स्पीक लाउडली. आर यू इम्प्रूविंग डे बाय डे? आर यू कमिटेड? Really committed? Yes, sir. Okay. Thank you so much for today's session. Have a good day. See you tomorrow. Thank you.